Hello everyone, my name is Siddharth. I'm going to start class 12 chapter 1 electric charges and fields. Okay, so let's start. So electrostatic deals with the study of force, fields and potential arises from static charges. The property of rough substance due to which they attract light object is called electricity. The electricity developed by rubbing or friction is called frictional or static electricity. So the rough substance which shows this property of attraction are said to have become electrified or electrically charged. So this is all about introduction. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को. ओके, जो कि इस चैप्टर की बेसिक यूनिट है, बेसिक टॉपिक है डिस्कशन का. इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर्स which give rise to an electric force between various objects. So it is a scalar quantity and SI unit is coulomb. And as you know, elementary particles, proton, electron, neutron. Okay, so proton has a positive charge, electron has a negative charge, and neutron is neutral. So it was observed that if two glass rods rubbed with wool or silk cloth are brought close to each other, so they repel each other. वही अगर wool और suppose two piece of silk cloth अगर रॉड को रब करोगे तो दे विल रिपेल ईच अदर. ग्लास रॉड और वूल अट्रैक्ट ईच अदर. Two plastic rods rubbed with cat's fur repel each other but attract the fur. So the rule is like charges repel and unlike charges attract each other. So positive negative attraction, negative positive attraction, positive positive repulsion, negative negative repulsion. When a glass rod is rubbed with silk, the rod acquires one kind of charge and silk acquires the second kind of charge. So this is true for any pair of objects that are rubbed to be electrified. So if an object possesses an electric charge, it is said to be electrified or charged. When it has no charge, it is said to be neutral. For example, atom. Atom as a whole is neutral. Okay. So now the next topic is conductors and electric charge. Okay. So some substances readily allow passes of electricity through them, others do not. So those which allow electricity to pass through them easily are called conductors. Okay. Or most of the non-metals like glass, porcelain, plastic, nylon, wood offer high resistance to the passes of electricity through them. They are called insulator. इसके अलावा भी हमारे पास अदर सब्सटेंसेस हैं जो कि स्पेसिफिक कंडीशन जैसे टेम्परेचर की कंडीशन हो गई या फिर डोपिंग हो गई, वो हम एक सेपरेट चैप्टर में डिस्कशन करेंगे. तो वो सब्सटेंस ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिक कंडीशन में तो वो इंसुलेट, नॉर्मल कंडीशन में तो वो इंसुलेटर ही है, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन में वो कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं. ठीक है, तो उन सब्सटेंस को हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स. ठीक है, वी विल डिस्कस लेटर. ओके, मेटेलिक बॉडीज ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, रेफ्रिजरेटर, टीवी आर कनेक्टेड टू अर्थ वायर. आई थिंक यू नो ऑलरेडी दिस. ओके, so when any fault occurs or live wire touches the metallic body, so charge जो extra charges होगा वो सारा का सारा फ्लो कर जाएगा कहाँ पर, अर्थ में, without damaging the appliance and without causing any injury to the human. Okay, so this is very important. Okay, next topic is charging by induction. So when we touch a pith ball with an electrified plastic rod, some of the negative charge on the rod are transferred to the pith ball and it also gets charged. So thus the pith ball is charged by contact. इसके अलावा जो चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होगा, यू हैव टू ब्रिंग टू मेटल स्फीयर्स ए एंड बी एंड सपोर्टेड बाय इंसुलेटिंग स्टैंड्स. Bring a positive charge rod near one of the spheres, say A, taking care it doesn't touch the sphere. So the free electron in the spheres are attracted towards the rod. This leave an excess positive charge on the rear surface of the sphere B. So this is important. So in second figure you can see when you are bringing rod, so this part of A become negative and rear part of B becomes positive. Okay, so the left surface of A has an excess of negative charge and the right surface of sphere B has an excess of positive charge. So होगा क्या कि शॉर्ट टाइम में इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द रॉड एंड force of repulsion related charges. So this process is called the induction of charge and happen almost instantly. Okay, if the rod is removed, the charge are not acted by any outside force and they is redistributed to their original neutral state. उसके बाद क्या करेंगे, if you separate out the spheres by a small distance while the glass rod is still held near sphere A,
So two spheres are found to be positively charged and attract each other. Remove the rod, the charges on the sphere rearrange themselves. So in this process, the metal spheres will each be equal and oppositely charged, and this is called charging by induction. Okay. So the next topic is basic properties of electric charge. Okay, so there are two types of charges, namely positive और negative. हमने पिछले slides में discuss किया था. So if the size of the charge bodies are very small as compared to the distance between them, उसको हम treat करेंगे as a point charges. Okay, so that is very important in physics. Okay, point charge. Now the properties of charges. So the first property is additivity of charges. Okay, simple है ये कि अगर तुम्हारे पास दो charges हैं, suppose Q1 Q2, एक है suppose 5 कूलम, दूसरा है suppose 3 कूलम. So the total charge will be 8 कूलम. एक है suppose +5, एक है -3 कूलम. So the total charge will be 5 minus 3 means 2 coulomb. Okay, so this is additivity of charge. Okay, so you just read out. Okay, after that, so charge has magnitude but no direction, so similar to the mass, but एक difference होता है mass और charge में कि mass तुम्हारा positive ही रहेगा चाहे तुम कहीं भी measure करो. Okay, even in the I mean at the center of the earth. Okay, but charge can be positive or negative both. Okay, either positive or negative. So charge is conserved, second property. So charge may get redistributed, but it's found that total charge of isolated system is conserved. Okay, so means charge can neither be created nor destroyed. Okay, quantization of charge. So all free charges are integral multiple of basic unit of charge denoted by E, जो कि क्या है, charge on electron. Okay, so the charge on any body, okay, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, Q equal to NE, integral multiple of basic charge. Okay, उसके बाद जो SI यूनिट होती है चार्ज की, वो क्या होती है, कूलम. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इसको हम सिंबल C से डिनोट करते हैं. और जो इसका वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. अगर तुम एक कूलम में अगर तुम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे Q इक्वल टू NE वाले फॉर्मूले से, सो यू विल गेट व्हाट, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स. सो 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर जो चार्ज आएगा वो आएगा तुम्हारा एक कूलम. सो यू कैन इमेजिन. ओके, if the proton and electrons are only basic charges in the universe, so all observable charges have to be integral multiples of E. Thus if the body contain n1 electrons or n2 protons, तो total charge क्या हो जाएगा तुम्हारा, n2 minus n1 E करके भी देख सकते हो. Okay, so the next topic is Coulomb's law. Okay, so Coulomb's measured the force between 2 point charges and found that it varied inversely as the square of the distance between the charges and was directly proportional to the product of their magnitude and acted along the line joining the two charges. Okay, so अगर तुम्हारे पास कोई भी दो पॉइंट चार्जेस हैं जिसके चार्ज क्या हैं, Q1 Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R, placed in vacuum if suppose, so the magnitude of the force will be F equal to K Q1 Q2 upon R square. Okay, so the next topic is forces between multiple charges. Okay, so consider a system of three charges Q1, Q2 and Q3. So force on one charge due to other charges, तो यहाँ पर other charges क्या हैं, Q2 and Q3. So you can easily calculate force by applying Coulomb's law. Okay, and also you have to use vector addition of forces due to each of these charges. Okay, so if a force on Q1 due to Q2 is denoted by F12, so F12 you can easily calculate. So okay, so force on Q1 due to Q2 क्या होगा, F12 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12 square R12 cap. Okay, ये वेक्टर फॉर्म है. Okay, in the same way the force on Q1 due to Q3 वो हम कैसे डिनोट करेंगे, F13. तो F13 क्या हो जाएगा, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q3 upon R13 square R13 cap. ओके, अब जो टोटल फोर्स मान लो अगर F1 है Q1 पर ड्यू टू चार्ज Q2 एंड Q3, तो वो तुम कैसे कैलकुलेट करोगे, F1 इक्वल टू वेक्टर सम. सो F1 इक्वल टू F12 प्लस F13. F12 की वैल्यू पुट करो, F13 की वैल्यू पुट करो और जो कॉमन है दोनों में वो कॉमन लो और फिर देखो क्या होता है. अब यहाँ पर एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ओके, जो क्या बोलता है, अगर मान लो तुम्हारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन Qn. ओके, तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2
तुम कूलम्स लॉ से निकालोगे, इट इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस Q3 Q4 एंड सो ऑन। सो टोटल फोर्स F1 ऑन चार्ज Q1 वो क्या हो जाएगा, ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस क्या हो जाएगा, F12 प्लस F13 प्लस F14 एंड सो ऑन प्लस एंड लास्ट F1n। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, F1 इज इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस F14 एंड सो ऑन F1n। सब सारी वैल्यू पुट कर दो F1 F12 F13 F14 की, 1/4 कॉमन ले लो और फिर इसको समेशन फॉर्म में लिख लो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा Q1 अपॉन Q1 सब में कॉमन है, तो Q1 अपॉन 4πε0 समेशन I इक्वल टू 2 to n QI अपॉन R1I स्क्वायर R1I कैप। ओके, तो तुम I की वैल्यू अगर 2 से पुट करना स्टार्ट करोगे और सबका सम करते चले जाओगे, सो यू विल गेट द फर्स्ट इक्वेशन F1। ओके, अब डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। सो द चार्ज क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक ऐसा फील्ड जनरेट करेगा जहाँ पर अगर तुम उस फील्ड में अगर कोई अनदर चार्ज लाओगे, सो इट विल एक्सपीरियंस वन फोर्स। ओके, सो वो हमें डिस्कस करना है। ओके, कि उसका फील्ड कहाँ से लेके कहाँ तक होगा, किस पॉइंट पर फील्ड कितना होगा, सो ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। ओके, सो द चार्ज Q produce an electric field everywhere in the surroundings. When another charge Q is brought at same point, the field there acts on it and produce a force. So electric field produced by the charge Q at a point R is given by E equal to 1/4πε0 Q upon R square R cap. Okay, so again it is in again vector form. So we obtain the force exerted by charge Q on a charge Q. Okay, so F इक्वल टू 1/4πε0 QQ अपॉन R स्क्वायर R कैप। सो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE। ओके, सो दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स, F इक्वल टू QE। इस स्लाइड में तुम देख सकते हो तुम्हारे पास चार्ज है प्लस Q और माइनस Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो रही है, तो प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, आउटवर्ड, और माइनस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या हो रही हैं, इनवर्ड। ओके, तो ये है। अब यहाँ पर एक चीज़ और पॉइंट समझने वाला है कि अगर मान लो Q को तुम F इक्वल टू मैंने बोला था क्या, QE, अगर मान लो Q को तुम क्या कर दो, यूनिटी ले लो, Q इज इक्वल टू 1 कूलम। ओके, तो उस केस में F इक्वल टू QE, तो Q1 तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, E आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज Q इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड बाई इट। कब, जब चार्ज क्या हो तुम्हारा, यूनिटी हो। ठीक है, तो यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, इसको डिफाइन कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो अगर एग्जाम में या फिर कहीं कोई डेफिनेशन पूछता है, सो यू हैव टू डिफाइन लाइक दैट ओनली। ओके, सो इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय इट, कब, व्हेन चार्ज इज यूनिटी। सो दस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज Q at a point in space may be defined as a force that a unit positive charge would experience if placed at that point. ओके, यहाँ पर एक चीज़ और समझना है कि जो ये टेस्ट चार्ज के बारे में तुमने अगर पढ़ा हो पहले, तो वो टेस्ट चार्ज क्या होता है, उसको पॉजिटिव क्यों लेते हैं, तो वो हमें भी डिस्कस करना है यहाँ पे। ओके, तो हम क्या करते हैं, इफ़ अ चार्ज Q इज ब्रॉट एट एनी पॉइंट अराउंड Q, सो Q इटसेल्फ इज बाउंड टू एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिकल फोर्स ड्यू टू Q। समझ गए, तो कैपिटल Q मान लो तुम्हारे पास चार्ज है, ठीक है, और स्मॉल q तुम दूसरा चार्ज ला रहे हो, तो दोनों एक दूसरे के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, फोर्स फील करेंगे। तो इस डिफिकल्टी को वो जो कि हमें सेकंड वाले केस में होने नहीं देना है, तो द वे आउट ऑफ दिस डिफिकल्टी इज टू मेक अ क्यू नेग्लिजिबली स्मॉल, जिससे क्या होगा कि क्यू का जो इफेक्ट कैपिटल क्यू पर होगा वो नेग्लिजिबल होगा, वो उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा उसको। ठीक है, वही हमें चाहिए कि इसके फील्ड को डिस्टर्ब ना करे, इंडिपेंडेंट वो रहे। सो द फोर्स क्यू इज देन नेग्लिजिबली स्मॉल बट द रेशियो एफ अपॉन क्यू इज फाइनाइट एंड डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो E इक्वल टू लिमिट Q टेंस टू 0 F अपॉन Q। तो यहाँ पर तुम लिमिट के फॉर्म में क्या कर सकते हो, इसको डिफाइन कर सकते हो, जहाँ पर Q जो है इट्स नॉट 0 बट इट टेंस टू 0। ओके, बिल्कुल छोटा सा, जिससे कि कैपिटल Q पर कोई फर्क ना पड़े। ओके, नोट दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज E ड्यू टू Q, तो डिफाइन operationally in terms of some test charge Q that is independent of Q. Okay, so for a positive charge, electric field will be directed radially outward from the charge. So on the other hand, if source charge is negative, so electric field vector at each point points radially inwards.
और क्या होगा, अगर मान लो सेम डिस्टेंस अगर तुम कंसीडर कर रहे हो चाहे कहीं भी हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। क्यों? क्योंकि आर सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, सेम होगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द पॉइंट चार्ज इज द सेम ऑन अ स्फीयर विद द पॉइंट चार्ज इज एट इट्स सेंटर। सो इन अदर वर्ड्स so it has a spherical symmetry। ओके, तो अगर मान लो कोई तुम्हारे पास 2 सेंटीमीटर का स्फीयर है और उसके सेंटर पे अगर तुमने कोई चार्ज रख दिया है, तो उसकी सरकमफ्रेंस पर, मतलब उसके आउटर स्फीयर सरफेस पर, ओके, हर पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। बट डायरेक्शन क्या होगी सब पे, रेडियली डिफरेंट होगी, आइदर इनवर्ड और आउटवर्ड। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब अभी तक हमने पिछले चैप्टर में, पिछले टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ वन चार्ज। ओके, सो दैट यू कैन कैलकुलेट इजीली। नाउ अब तुम्हारे पास क्या है, सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, ठीक है, मोर देन वन चार्ज। सो कंसिडर अ सिस्टम चार्ज Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन with their position vector r1 r2 r3 and so on, okay, with relative to some origin, okay। ओ, तो अब क्या करना है, बहुत ही ईजी है। क्या करना है तुमको, एक की वजह से चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ठीक है, Q1 की वजह से निकालो, Q2 की वजह से निकालो, ठीक है। सो लेट्स कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज एट R ड्यू टू Q1, ओके, दैट विल बी E1 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R1P स्क्वायर R1P कैप, वेक्टर फॉर्म में ही लिखेंगे। सो इन द सेम मैनर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 निकालो एट R ड्यू टू Q2, वो क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू 1/4πε0 Q2 अपॉन R2P स्क्वायर R2P कैप। ऐसे ही E3 निकालो, E4 निकालो एंड सो ऑन, इसको एक्सटेंड कर दो N के लिए, QN के लिए, ठीक है। सो EN इज ड्यू टू QN। सो उसके बाद तुम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट R क्या हो जाएगा, इसकी वजह से सबका सम करना होगा तुमको, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस एंड सो ऑन EN, सारी वैल्यू पुट करेंगे 1/4πε0 Q1 अपॉन R1P स्क्वायर R1P कैप, ऐसे ही E2 की वजह से, ऐसे EN की वजह से, और फिर 1/4πε0 कॉमन ले लेंगे, इसको समेशन फॉर्म में लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये समेशन I इक्वल टू 1 to N QI अपॉन R1 RIP स्क्वायर RIP कैप, ओके। तो ये तुम्हारा जनरल फॉर्मूला आ जाएगा। तो तुम्हारे पास एक चार्जेस हैं, दो चार्जेस हैं, 5 चार्जेस हैं, जितने भी चार्जेस हैं, you can easily calculate electric field at one point, okay, due to all charges। अब आता है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट इन अ स्पेस अराउंड द सिस्टम चार्ज टेल्स यू द फोर्स अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड एक्सपीरियंस इफ प्लेस्ड एट दैट पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द सिस्टम। ये अभी हमने इसके डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, ठीक है। सो F इक्वल टू क्यू ई, जहाँ पर Q अगर 1 ले लोगे तो F इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, E के इक्वल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट इट्स अ फोर्स, ओके, जो कि वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा अगर तुम उसको उस पॉइंट पर रख दोगे तो। और दूसरी बात, क्योंकि फोर्स तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तुम्हारी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। सो दिस इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसी आगे हम जैसे मैग्नेट के बारे में देखते हैं कि मैग्नेट अपनी चारों तरफ क्या कर लेता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है। तो अगर उस फील्ड में अगर तुम कोई आयरन फिलिंग्स या आयरन का पीस रख दोगे, सो इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, ओके। और ये एक्सपेरिमेंट तुम ऑलरेडी बचपन में कर चुके हो, राइट। अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अ वेरी इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक। सो इन ये फिगर तुमको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड में। तो इस फिगर में क्या है, तुम्हारे पास पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है और तुम्हारे पास रेडियली क्या हो रही है, आउटवर्ड फील्ड लाइंस मूव हो रही हैं, ठीक है। एरो तुमको क्या इंडिकेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फोर्स, और वो क्या है, एक तरीके से द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस एट दैट टेल ऑफ दैट एरो, ओके। उसके बाद तुम क्या कर सको, इसको कनेक्ट करते चले जाओ, ठीक है, कनेक्ट करते चले जाओगे इन अ वन डायरेक्शन, सो दैट विल गिव यू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन दैट डायरेक्शन, ओके। सो वी दस गेट मैनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओके, सो ऑल पॉइंटिंग आउटवर्ड फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव है। अगर तुम वहाँ नेगेटिव चार्ज लोगे तो वो इन्वर्ट्स आएंगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव है, वहाँ पर तुम कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, कोई टेस्ट चार्ज मैंने कहा था पॉजिटिव ही लेंगे, तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रखोगे तो वो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, तो वो इनवर्ट की तरफ मूव होंगी, ओके। फोर्स जो लगेगा वो इनवर्ट लगेगा, ठीक है। सो नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइंस, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग है, कहाँ वीक है, तो वो तुमको फील्ड लाइंस डिफाइन करेंगी।
अगर कहीं फील्ड लाइंस क्लोज हैं एक दूसरे से, या जहाँ डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा है वहाँ पर जो फील्ड होगा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और इसके अपोजिट कर दो, जहाँ फील्ड लाइंस तुम्हारी दूर दूर हैं, डेंसिटी क्या है, लेस है, तो वहाँ पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एंड दिस रूल यू कैन अप्लाई टू मैग्नेटिक फील्ड एंड एनी अदर ओके फील्ड। तो अभी हमने डिस्कस किया था। सो अवे फ्रॉम द चार्ज क्या होगा, फील्ड गेट्स वीकर एंड डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइंस इज लेस एंड रिजल्टिंग इन वेल सेपरेटेड लाइंस। इसको भी हम बहुत इजीली समझ सकते हैं, अगर तुमने को आइडिया होगा सॉलिड एंगल के बारे में, तो सॉलिड एंगल के बारे में हम का यूज़ करके हम इसको समझ सकते हैं। तो होता क्या है कि अगर मान लो तुमने कोई एलिमेंट एरिया एलिमेंट कंसीडर किया है, अब यहाँ पर हमने दो एरिया एलिमेंट कंसीडर करें हैं, P1 और P2, ठीक है। तो अब सॉलिड एंगल है हमारा डेल ओमेगा, ओके। तो नंबर ऑफ लाइंस कटिंग ईच एरिया एलिमेंट्स सेम ही है, ठीक है, चाहे वो P1 पर है, चाहे वो P1 है तुम्हारा एरिया एलिमेंट, चाहे वो P2 है। लेकिन देखो नंबर ऑफ लाइंस जो है वो सेम ही पास हो रही हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ लाइंस P1 वाले एरिया में पास पास हैं और P2 वाले एरिया में दूर दूर हैं। तो मैंने पहले ही बोला था कि अगर क्लोजर हैं स्ट्रॉन्ग, अगर फार अवे हैं तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अब वो कैसे निकालेंगे, सो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तुम निकालोगे कटिंग यूनिट एरिया एलिमेंट, वो कैसे निकालेंगे, N1/R1² डेल ओमेगा, वो क्या यहाँ पर होगा, P1 पर होगा, और P2 पर क्या होगा, N1/R12² डेल ओमेगा, ठीक है। सो अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि N और डेल ओमेगा जो वो क्या है, कॉमन ही है। मैंने बताया था अभी P1 एरिया एलिमेंट और P2 एरिया एलिमेंट, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या है, पास है, डेल ओमेगा क्या है, दोनों के लिए सेम है। तो इसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड क्लियरली हैज़ किस पर डिपेंडेंसी आ जाएगी, 1/R² पर। तो R अगर तुम्हारे पास ज़्यादा होगा, मतलब जितना ज़्यादा दूर होगा, तो उतना ही फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम, वीक होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, ओके। अब इसके बाद हमें कुछ फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी देखनी है। तो बहुत ईजी ये भी कि फील्ड लाइंस जो होती है हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और एंड होती हैं नेगेटिव चार्ज पे, ठीक है। इफ अ सिंगल चार्ज, देयर इज अ सिंगल चार्ज, दे मे स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। अगर मान लो चार्ज फ्री रीजन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। क्यों? क्योंकि देखो अगर तुम तुम्हें मान लो किसी पॉइंट पे अगर तुम्हें डायरेक्शन देखनी है तो तुम क्या करोगे, उस फील्ड लाइन पे, उस पॉइंट पे तुम क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो अगर मान लो तुम्हारे पास दो फील्ड लाइन हैं जो कि क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, तो वहाँ उस पॉइंट पे तुम दोनों फील्ड लाइन्स के करस्पॉन्डिंग दो टेंजेंट ड्रॉ कर लोगे और दो डायरेक्शन वो शो करेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए कभी टू फील्ड लाइन्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, दे विल नेवर इंटरसेक्ट, ओके। सो दिस इज इम्पोर्टेंट एंड इस टाइप के क्वेश्चंस को वाइवा में पूछा जा सकता है। सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो दिस फॉलो फ्रॉम द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हम जानते हैं ऑलरेडी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सम सिंपल चार्ज कॉन्फिगरेशन, वो तुमको दिख रहा है। सो ए इज फिगर फॉर पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड, बी फिगर इज नेगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ड, और ये क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे तो कुछ बीच में तुम्हें रिपल्शन टाइप का कुछ अलग से शो हो रहा होगा, और उधर क्या है पॉजिटिव नेगेटिव, तो वहाँ डी पार्ट में अट्रैक्शन टाइप का शो होगा, ठीक है, फील्ड लाइंस, ठीक है, और उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। तो यू कैन इजीली ड्रॉ फॉर अ सिंगल चार्ज एज वेल एज फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस। अब आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी डिफाइन द एनालॉगस क्वांटिटी लाइक फ्लो ऑफ लिक्विड एंड कॉल इट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, तुम्हारा एरिया एलिमेंट को क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। तो कितनी क्रॉस कर रही हैं और कैसे क्रॉस कर रही हैं, ठीक है, वो एंगल डिपेंडेंस, ये सारी हमें चीज़ें देखनी है। तो यही हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स में डिस्कशन करना है, ओके। और इसको तुम बिल्कुल कंपैरिजन कर सकते हो, तुम वो जो फ्लो ऑफ लिक्विड से कंपैरिजन कर सकते हो, ओके। So the number of field lines crossing a unit area placed normal to the field at a point is a measure of strength of electric field at that point, okay.
So if we place a small planar element area del s normal to E at a point, so number of field lines crossing is proportional to E del s. ठीक है. अब मान लो ये तो नॉर्मल रखा हुआ है, अगर मान लो किसी एंगल पे रखा हुआ है तो तुमको उसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा. तो डेल एस का तुम्हें कंपोनेंट लेना पड़ेगा, डेल एस कॉस थीटा. तो इस केस में क्या हो जाएगा, सो द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया एलिमेंट विल बी स्मॉलर और प्रोजेक्शन ऑफ द एरिया एलिमेंट नॉर्मल टू ई क्या हो जाएगा, डेल एस कॉस थीटा. तो अब अगर तुम वो निकालते हो तो वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ई डेल एस कॉस थीटा कंबाइंड अगर तुम देखोगे तो. ठीक है. तो नॉर्मली ई डेल एस, और अगर थीटा एंगल पर है सपोज 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, तो ई सो डेल एस कॉस थीटा. So when theta equal to 90 degrees, so field lines will be parallel to del s and will not cross at all. Okay. अब आता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक डायपोल. It is also very important. So an electric dipole is a pair of equal and opposite point charge q1 and minus q or separated by a distance 2a. तो तुमको क्या करना है, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज लेने हैं, उनको किसी डिस्टेंस सेपरेटेड डिस्टेंस बाई 2a लेना है. ठीक है. और रख देना है, तो वो तुम्हारा इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिडर की तरह वेव करेगा. जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डायपोल की वो क्या होती है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू. ठीक है. दिस इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल. ओके. अब क्या है कि अगर मान लो तुमने कोई लार्ज डिस्टेंस ले रखी है डायपोल से, ठीक है, यानी कि व्हेन आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2a, तो उस केस में जो फील्ड होगा ड्यू टू क्यू और माइनस क्यू वो नियरली कैंसिल आउट हो जाएंगे. क्यों, क्योंकि उस वक्त तुम 2a जो है, जो 2a क्या है, डिस्टेंस ऑफ चार्जेस जो कि कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं क्या, डायपोल. तो वो 2a अगर तुम क्या कर लोगे, नेग्लिजिबल ले लोगे, तो तुम्हारा जो r होगा जो कि बहुत बड़ा है 2a से, तो q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे और माइनस क्यू से निकालोगे, तो दोनों इक्वल और अपोजिट होंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. तो इट इज ऑल्सो वेरी इजी. सो फील्ड of an electric dipole. So electric field at any general point P is obtained by adding the electric field E minus Q due to charge minus Q और E plus Q due to charge plus Q. और फिर बाद में हम लगा देंगे क्या, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स. तो बहुत ईजी है, मतलब तुम्हें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल यू कैन कैलकुलेट इजीली. बट यहाँ पर क्या है, तुम्हारे पास दो वो होंगे कंडीशन, एक्सियल और इक्वेटोरियल. तो वो हमें सेपरेटली तुम्हें मतलब दोनों डिस्कशन करना है. ठीक है. तो डिस्कस करते हैं. फर्स्ट फॉर अ पॉइंट ऑन अ एक्सिस. तो उसके लिए क्या करोगे, सपोज मान लो कोई पी पॉइंट कंसिडर किया गया एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल ऑन द साइड ऑफ द चार्ज क्यू. तो वहाँ क्या करोगे, ई माइनस क्यू निकालोगे, वो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस ए का होल स्क्वायर पी कैप. और ई प्लस क्यू निकालोगे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ए का स्क्वायर पी कैप. तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे सेंटर से डिस्टेंस दे रखी है वो पी की, तो Q से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, क्योंकि देखो P जो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है 2a, तो इसको डिवाइड करोगे a हो जाएगा. तो सेंटर से डिस्टेंस निकालोगे P की, तो एक की हो जाएगी r प्लस ए और दूसरी की हो जाएगी r माइनस ए. ठीक है. तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, वी कैन इजीली कैलकुलेट. ओके. अब क्या करना है, बस खाली सम करना है. तो टोटल फील्ड एट P क्या हो जाएगा, E इक्वल टू ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू. तो 4 क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, तो क्या रह जाएगा ब्रैकेट में 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर और पी कैप. उसके बाद एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4a r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर पी कैप. अब वही अगर मान लो कोई मैं पॉइंट कंसिडर करता हूँ जो कि डायपोल से काफ़ी दूर पर है, यानी कि आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो उस केस में क्या कर सकते हो तुम, ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हो. तो तुम्हारे पास फाइनली क्या बन जाएगा, नीचे आर की पावर 4 और आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचेगा आर क्यूब. तो फाइनली तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, E इक्वल टू 4QA अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू पी कैप. ये है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके. तो अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो मैं नंबर शेयर करूँगा, यू कैन व्हाट्सएप और यू कैन कमेंट ऑल्सो इन कमेंट सेक्शन एरिया, आई कैन रिप्लाई. ओके. सो देर शुड बी नो इश्यू. ओके. सो अब कंसिडर करते हैं इक्वेटोरियल प्लेन. तो अगर मान लो पॉइंट इक्वेटोरियल प्लेन कौन सा है, मान लो दो डायपोल है, डायपोल के सेंटर से एक एक्सिस पास करो, तो वहाँ पर एक प्लेन कंसिडर करो, सो दैट विल बी द इक्वेटोरियल प्लेन. तो अगर मान लो उस प्लेन पर अगर मान लो कोई पॉइंट P है, तब फिर हम टोटल चार्जेस मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे, तो वो भी बहुत ईजी है, बट थोड़ा सा तुम्हें
मैथमेटिक्स यूज़ करनी पड़ेगी. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू क्या हो जाएगा, ई प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू अपन 4πε0 1 अपन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. यहाँ पर तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो तुम्हारे पास ये निकल आएगी डिस्टेंस, पी से चार्ज क्यू की डिस्टेंस और पी से चार्ज माइनस क्यू की डिस्टेंस. ठीक है, तो ऐसी ई माइनस क्यू हो जाएगा क्यू अपॉन 4πε0 1 अपन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. क्लियरली द कंपोनेंट. अब क्या होगा यहाँ पर, तुम हर वेक्टर को क्या करते हो, तुम दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. तो यहाँ पर क्या होगा, जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर है और एक नीचे है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, ई प्लस क्यू का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ई माइनस क्यू का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो दोनों क्या, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम ही है, तो वो दोनों ऐड हो जाएंगी. तो देखते हैं कैसे ऐड करना है और कैसे सॉल्व करना है. नेक्स्ट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डायपोल्स. सो इन मोस्ट मॉलिक्यूल्स, तुम जानते हो मॉलिक्यूल्स जो होता है वो तुम्हारा एटम से मिलकर बना होता है. एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस होता है उसके अंदर. ठीक है, तो और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है. तो एक तरीके से मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, अलॉट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और लॉट ऑफ नेगेटिव चार्ज. क्या करोगे, उसका पॉजिटिव चार्जेस का सबका एक सेंटर ऑफ मास निकालोगे. ठीक है, ऐसी नेगेटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास निकालोगे. ठीक है, वो अगर मान लो कोइंसाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब दोनों एक ही पॉइंट पर हैं, तो उस केस में क्या होगा, कोई डायपोल मोमेंट नहीं होगा. डायपोल मोमेंट विल बी जीरो. क्यों? क्योंकि बीच की सेपरेशन ही क्या है, दोनों की जीरो. सॉरी, हाँ, जीरो. अब क्या है कि मान लो अगर हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, सपोज तुम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, तो हो सकता है कि दोनों के मतलब वही सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, वो दोनों के बीच में क्या आ जाए, थोड़ा सेपरेशन आ जाए. क्यों? बिकॉज ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो उस केस में जब दोनों के बीच में सेपरेशन आ जाएगा तो उस केस में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अब जीरो नहीं होगा, कुछ होगा. देयर विल बी सम डेवलप डायपोल मोमेंट. ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. सो बट इन सम मॉलिक्यूल्स क्या होगा, द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस एंड पॉजिटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड, देयरफॉर दे हैव अ परमानेंट डायपोल मोमेंट. अब वहाँ कोइंसाइड नहीं कर रही हैं तो डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है. यानी कि यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, फिर भी क्या है, दोनों के कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है और दे हैव अ परमानेंट डायपोल मोमेंट. ओके, सो इवन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स. तो आई मीन समझ में आना चाहिए व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डायपोल्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री ऑल्सो. अब हम निकालना है डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड. ओके, तो इजी है, देखते हैं. तो देखो, अगर मान लो मैंने बताया था जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा. अब इस डायपोल में क्या होता है, हमारे पास दो चार्ज होते हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, बट दोनों इक्वल हैं चार्ज, बट खाली डिफरेंस इसका है पॉजिटिव और नेगेटिव का. तो क्या लगेगा, माइनस क्यू पर फोर्स निकालो कितना होगा, एफ इक्वल टू माइनस क्यू ई. प्लस क्यू पर फोर्स निकालो क्या होगा, एफ इक्वल टू प्लस क्यू ई. लेकिन एक पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम रहेंगे लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी. तो सपोज अगर ये माइनस क्यू पर फोर्स आ रहा है नीचे की तरफ और प्लस क्यू पर फोर्स आ रहा है ऊपर की तरफ, टू इक्वल फोर्स अगर दोनों लेकिन सेपरेट आउट हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, एक तरीके से टॉर्क जनरेट करेंगे. तो वो हमें डिस्कस करना है यहाँ पे. ओके, सो देर इज अ फोर्स क्यू ई ऑन ई क्यू एंड माइनस क्यू ई ऑन माइनस क्यू. सो नेट फोर्स ऑफ डायपोल इज जीरो since E is uniform. However, the charges are separated, so the force act at different points, so resulting in a torque on a dipole. तो टॉर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो यहाँ पर फोर्स क्या है, क्यू ई, आइदर फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस. और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर तुम निकालोगे साइन थीटा लगा के, तो वो क्या होगा तुम्हारा 2a साइन थीटा आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो ये हो जाएगा 2qa e साइन थीटा. अब क्या करोगे यहाँ पे, 2qa को रिप्लेस कर दोगे p से, तो ये आ जाएगा तुम्हारा p साइन थीटा. और यहाँ पर तुम दो चीज़ और पढ़ चुके होगे, क्योंकि देखो p भी तुम्हारा वेक्टर है, e भी वेक्टर है, और a भी साइन थीटा. तो तुमने वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा, a क्रॉस b इक्वल टू ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर, a डॉट b इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. ठीक है, तो ए बी साइन थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, p क्रॉस e.
So tau equal to P cross E. So this torque will tends to align the dipole with the field E. When P is aligned with E, the torque is zero. ठीक है, वो हमेशा उसको अलाइन करने की कोशिश करेगा फील्ड की डायरेक्शन में. ठीक है, एक बार जब P अलाइन हो जाएगा तो उस केस में टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हमारे पास यहाँ पर तीन तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. नाम से ही पता चल रहा है लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम, तो तुम्हें याद रखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, सो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग अ लाइन और अलोंग अ वायर, समथिंग लाइक दैट, अलोंग अ स्ट्रेट, और सरफेस ओवर द सरफेस, वॉल्यूम ओवर द वॉल्यूम. ओके, 3D. तो डिस्कस करते हैं एक एक करके तीनों को, ईजी है. So first, linear charge distribution. So when a distribution of charge is uniformly along the line, then it is called linear charge distribution. So lambda is equal to del Q upon del L, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, जिसको कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर पर मीटर. ऐसी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसे भी सेम रिप्रेजेंट कर दोगे. व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द एरिया, इट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, सो चार्ज पर यूनिट एरिया, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर. ओके, वेरी इजी, डेफिनेशन भी इजी है और जो मैथमेटिकल उनका रिप्रेजेंटेशन है वो भी इजी है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए. सो द यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर. ओके, सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगेन इट इज डिफाइंड एज अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ वॉल्यूम. सो रो इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल वी, यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलॉम पर मीटर क्यूब. So field due to continuous charge distribution can be obtained in such a in much the same way as for a system of discrete charges. Okay, ये भी बहुत इजी है, हम देखेंगे कैसे निकालना है. ठीक है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लैम्डा से, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सिग्मा से, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से. ओके, तो ये तीनों के रिप्रेजेंटेशन है. तो आई होप इट्स क्लियर एंड देयर शुड बी नो डाउट. ओके, Now consider any general point P inside or outside distribution with position vector R. ठीक है, तो तुम अगर देखो रो कैसे निकालते हैं, डेल क्यू अपॉन डेल वी, तो डेल क्यू क्या आ जाएगा, रो डेल वी, यानी चार्ज क्या आ जाएगा तुम्हारा, रो डेल वी. तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज निकाल लो, रो डेल वी. तो सिंपली तुम्हें चार्ज की जगह क्या पुट करना है, रो डेल वी पुट करना है. तो डेल ई क्या हो जाएगा, 1/4πε0 रो डेल वी अपॉन आर डैश स्क्वायर आर डैश कैप, मतलब वेक्टर फॉर्म में लिखना है. ठीक है, यहाँ पर ये आर डैश और ये उस चार्ज एलिमेंट की डिस्टेंसेस हैं. ठीक है, पी और चार्ज एलिमेंट के बीच की डिस्टेंस आर डैश. ओके, और आर कैप तुम्हारा यूनिट वेक्टर है. ठीक है, अब तुम क्या करोगे, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगा दोगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दोगे सम करके. तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 1/4πε0 सम कर दोगे ओवर ऑल डेल वी. अभी क्या किया है हमने, इस पहले वाले इक्वेशन में हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया था, वॉल्यूम एलिमेंट, जो कि क्या है, डेल वी है, जिसका वॉल्यूम क्या है, डेल वी है. ऐसे ही तुम्हें छोटा करने हैं और हर वॉल्यूम का लिए निकाल के और सबको क्या कर देना है, सम कर देना है. तो सिंपल है. सो समेशन ऑल डेल वी रो डेल वी अपॉन आर डैश स्क्वायर आर डैश कैप. तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अगेन आई एम सेइंग, इफ इन केस ऑफ एनी डाउट जस्ट पिंग मी और कमेंट. ओके, इन द कमेंट सेक्शन एरिया. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज गॉस लॉ. ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल, इस पर बेस्ड डेरिवेशन, इस पर बेस्ड कुछ भी आ सकता है एग्जाम में. ठीक है, तो इसको अच्छे से समझेंगे. और कोई डाउट होगा लेट मी नो. ओके, सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, total flux linked with the closed surface is 1/ε0 times charge enclosed by the closed surface. तो यहाँ पे ये तुम्हें इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो है चार्ज एनक्लोज्ड. इसको माइंड में रख लेना. जब भी गॉस लॉ आता है माइंड में तुम्हारे एक चीज़ होनी चाहिए, क्या, चार्ज एनक्लोज्ड. ओके, ये चीज़ अगर माइंड में है तो तुम इससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर दोगे. सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज जीरो कब, इफ नो चार्ज इज एनक्लोज बाय द सरफेस. मैंने क्या कहा था उसमें, एनक्लोज्ड चार्ज. अब जब कोई चार्ज एनक्लोज्ड ही नहीं है, चार्ज इज जीरो, एनक्लोज चार्ज इज जीरो, तो उस केस में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. दूसरा, गॉसेस लॉ इज ट्रू फॉर
any closed surface no matter what its shape or size. So Gauss law is based on the inverse square dependence on distance contained in Coulomb's law. So any violation of Gauss's law will indicate departure from the inverse square law. So both are correlated. Okay, इस inverse square dependence है, तो ये चीज़ माइंड में रखनी है. So you can easily derive one from other. Okay. नेक्स्ट इज हमें इसमें एक सरफेस चूज करना पड़ता है जब भी हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो वो सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस. अब ये गॉसियन सरफेस क्या होगा, इट कैन पास थ्रू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और यू कैन यूज एनी टाइप जो कि सुटेबल होगा. जैसे मान लो तुमने कोई लाइन वायर है, सपोज कोई वायर है और उस पर चार्ज है. ठीक है, तो तुम सिलेंड्रिकल कंसिडर कर सकते हो. कोई पॉइंट चार्ज है, तुम स्फेरिकल कंसीडर कर सकते हो. तो गॉसियन सरफेस चूज करना तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें कैसे चूज करना है. ठीक है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, डेल फाई इक्वल टू ई डेल एस, वो हम ऑलरेडी जानते हैं. ई की वैल्यू पुट कर दो, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप डॉट डेल एस. और जब तुम आर कैप डॉट डेल एस को जब तुम ओपन करोगे डॉट प्रोडक्ट से, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एक डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होगा, डेल एस का डेल एस ही रखेंगे अभी, और कॉस जीरो, और कॉस जीरो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. तो तुम्हारे पास डेल फाई आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डेल एस. ठीक है, तो Q इक्वल टू, अब सब समेशन लेके स्टार्ट करते हैं. तो समेशन ऑल डेल एस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डेल एस. अब जब ये बाहर ले लोगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो समेशन ऑल डेल एस क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये पूरा स्फीयर का एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर. तो वो जब वैल्यू पुट कर दोगे एस की, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारे पास बचेगा फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो ये तुम्हारा ड्राइव हो गया कि जो फ्लक्स है वो क्या है, जो भी एनक्लोज चार्ज है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स. ठीक है, सो क्यू इक्वल टू फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. It's easy only, but you have to understand each and everything so that you can derive something and you can utilize in numericals also. अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की. सो एप्लीकेशंस यहाँ पर हमारे पास 3 है, लेकिन एक जो एप्लीकेशन है वो कट हो गई है. ठीक है, सिलेबस से इस साल के. So for some symmetric charge distribution, however, it is possible to obtain electric field in a simple way using Gauss law. तो पहला जो आता है तुम्हारा क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है. तो मैंने कहा था जब अगर मान लो लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, तो तुम उसको क्या कर सकते हो, उसमें जो गॉसियन सरफेस कंसीडर करोगे वो क्या करोगे, सिलेंड्रिकल करोगे. तो एक सबसे पहले हम एक स्फीयर कंसीडर करते हैं जिसपे कि 3 पॉइंट लेते हैं. ठीक है, P P1 P2. तो होगा क्या, सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ओ की वजह से, जो ओ पर जो चार्जेस है इसकी वजह से सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम रहेगा, लेकिन रेडियली जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, आउटवर्ड होगी. तो वो हमें देखना है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसको एक्सटेंड करेंगे और फाइनली इसका फॉर्मूला निकाल देंगे, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर. ओके, तो इसके लिए हम क्या करें, कंसीडर करेंगे एक इनफाइनेटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर कंसीडर करेंगे जिस पर कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा है. और लैम्डा मैं बता चुका हूँ क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल. ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ. तो अगेन कंसीडर 3 पॉइंट P P डैश और P डबल डैश. सो ऑब्टेन आर कंप्लीटली इक्विवेलेंट विद रिस्पेक्ट टू द चार्ज वायर. सो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की हर पॉइंट पर क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी. मैं तो ऑलरेडी बता चुका हूँ. अगर आउटवर्ड कब, क्योंकि मैंने वहाँ पॉजिटिव लिया है. ठीक है, चार्ज, तो अगर वही चार्ज अगर तुम नेगेटिव लोगे तो रेडियली इनवर्ड आ जाएगी. ठीक है, so to calculate the field, imagine a cylindrical Gaussian surface. So this is important again. Okay, so any doubt? So flux अगर आप सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे थ्रू Gaussian surface, जो कि क्या होगा, फ्लक्स थ्रू कर्व सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द सरफेस. ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा E इंटू 2 पाई आर एल, मतलब जो भी सरफेस एरिया है, और सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई आर एल. सो सरफेस, अब तुम ये तो तुमने वैसे निकाल लिया, अब तुम गॉस लॉ लगा दो. वो क्या होगा, Q अपॉन एफ साइन नॉट, और Q की वैल्यू पुट कर दो लैम्डा, और दोनों को क्या दो, तो इससे तुम्हारा फाइनली आ जाएगा E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एफ साइन नॉट आर. इसको वेक्टर फॉर्म में भी तुम लिख सकते हो. सो वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर लगा दोगे. सो E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एफ साइन नॉट आर यूनिट वेक्टर. ओके,
So E is directly outward if lambda is positive or inward if lambda is negative. Okay, so this is first application based on Gauss's law. Okay, अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड टॉपिक, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो उसमें हम क्या करेंगे, अगर तुमने इनफाइनाइटली प्लेन शीट ली हुई है तो प्लेन शीट है तो तुम सरफेस चार्ज डेंसिटी कंसीडर करोगे। पहले वाले केस में क्या कंसीडर कर रहे थे हम, लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी थी। यहाँ पर क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज सिग्मा। अब यहाँ पर तुम क्या करोगे, एक एरिया एलिमेंट कंसीडर करोगे। तो अगर ये जो बीच में जो एरिया दिख रहा है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर तुम यहाँ पर क्यूबॉइड कंसीडर करोगे सो दैट विल बी गुड फॉर गॉसियन सरफेस। ओके, सो लेट्स डिस्कस step by step. So suppose sigma be the uniform surface charge density of an infinite plane sheet, so we can take the Gaussian surface to be a rectangular cuboid type का parallelopipe, okay, of cross sectional area A. So as seen from the figure, so only the two faces, faces 1 or 2 will contribute to the flux. So electric field lines are parallel to the other surface, so they do not contribute to the electric flux. यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है। तो नेट फ्लक्स जो होगा क्या हो जाएगा, 2EA हो जाएगा, फेस 1 और फेस 2 की वजह से दोनों में इक्वली रहेगा, तो ऐड कर दोगे। सो चार्ज क्या होगा इनक्लोज बाई क्लोज सरफेस, सिग्मा ए, वो तुम उससे निकाल लोगे सरफेस चार्ज डेंसिटी से। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तो क्यू आ जाएगा तुम्हारा सिग्मा ए। अब यहाँ पर तुम गॉस लॉ लगा के इसको इक्वेट कर सकते हो। तो सो 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेल कैंसिल आउट करो ए को, तो E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और फिर इसको तुम वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n यूनिट वेक्टर। ओके, तो ये तुम्हारी सेकंड एप्लीकेशन है। तो अगेन इसका भी तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो आएंगे तो तुम्हें फॉर्मूला बेस्ड ऑन फॉर्मूला ही तुमको यूज़ करने पड़ेंगे कैलकुलेट करने के लिए। तो ये हमने फिनिश कर दिया, बस लास्ट वाला टॉपिक छोड़ दिया क्योंकि वो कट हो गया है, ठीक है। अब ये मैंने सारे फॉर्मूले एक जगह कलेक्ट कर दिए हैं, तो you can just revise, go through it. Okay, so first is Coulomb's law, again we have already discussed. So force on q2 due to q1, again f12 है ना, और f21 f12 force on 1 due to 2. Okay, so again we have principle of superposition. So f1 equal to f12 plus f13 plus f1n, सबका सम करके कॉमन लेके समेशन ले लेंगे, ठीक है। अगेन वेरी इजी। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, वो भी निकाल सकते हैं इजीली, E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस एंड सो ऑन En, सारी वैल्यू पुट करके कॉमन लेके समेशन ले लेंगे। उसके बाद आता है फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्वेटोरियल पोजीशन, तो वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, बस मैंने यहाँ सारे फॉर्मूले एक जगह कलेक्ट कर दिए हैं ताकि हेल्प मिल जाए और एक जगह सारे फॉर्मूले कनेक्ट हो, और रिवाइज करो और न्यूमेरिकल सॉल्व करो। उसके बाद ये एक्सियल पोजीशन की है, तो वो 2p/r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2p अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यू। उसके बाद गॉस लॉ है, गॉसेस लॉ में वही डेल फाई इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर डेल s। उसके बाद फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, जो हमने अभी डिस्कस किया था, E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r n कैप, ये वेक्टर फॉर्म में है। उसके बाद फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट है, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वेक्टर फॉर्म में भी तुम यूज निकाल सकते हो। और ये स्फेरिकल शेल का ये कट हो गया है, ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड, तो दैट इज़ ऑल अबाउट। इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो वो तुमको सॉल्व करने हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चंस हैं टोटल, तो इसको देखो, इसके आंसर तुमको इसी वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो अगर तुम कहीं मान लो नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो उस वीडियो को देखो दोबारा और फिर इसको सॉल्व करो और मुझे कमेंट में पिंग करो अगर कोई डाउट है तो अभी, और इसके करेक्ट आंसर भी मुझे पिंग करो, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। So first chapter is finished. Okay, so one by one I will plan for other chapters. Okay, so तुमको बस खाली जब भी तुमको मान लो लग रहा है कि हाँ मुझे फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करना है, तो अगर मान लो फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करना है तो फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देख ली पूरी, तो तुम्हारा 1 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ठीक है।
क्यों? क्योंकि मैंने इसमें मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया हुआ है। इट इज़ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ओनली, ठीक है। ऑल फार्मूलाज और डेरिवेशंस, सम डेफिनेशंस, सो एवरीथिंग, ओके। तो एक एक करके मैं वीडियो डालता हूँ, और इसके अलावा फिर बाकी फिर देखेंगे आगे। अगर मान लो मुझे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज चैप्टर वाइज अगर डिस्कस करना है तो वो भी मैं डिस्कस करूँगा वीडियो के थ्रू। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पर बटन पर क्लिक कीजिए, ताकि सारे वीडियोस जो भी मैं इन फ्यूचर बनाता हूँ तो वो आपको नोटिफिकेशन आती रहेंगी। ओके, ओके, थैंक यू अगेन, बाय।